السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا مزید 34 زندگیاں نگل گیا، 1101 اموات۔ کرونا متاثرین کی تعداد 52,437 تک جا پہنچی۔ طیارہ حادثے میں کوتاہی ثابت ہوئی تو مستعفی ہو جاؤں گا، وزیر ہوابازی کہتے ہیں۔ واقعے کی مکمل غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کرائی جائے گی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق کل پاکستان میں عید الفطر ہوگی۔ فواد چودھری کہتے ہیں آئندہ چند سالوں میں لوگ عید چاند پر بھی کر سکیں گے۔ عید کا فیصلہ فواد چودھری نہیں بلکہ رویت ہلال کمیٹی کرے گی، وزیر مذہبی امور کہتے ہیں۔ فواد چودھری آج کل چاند کھیل رہے ہیں۔ عید کا چاند نظر آ گیا، تمام شہادت موصول ہوئیں، مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں عید کل ہوگی۔ عوام بازاروں میں غیر ضروری رش نہ کریں، وزیر اعلیٰ سندھ کی اپیل۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اپنانا ہی اس وبا سے نجات پانے کا راستہ ہے۔ PIA طیارہ حادثے میں معجزانہ طور پر محفوظ محمد زبیر کا بیان سامنے آ گیا۔ زبیر نے کہا کہ روشنی نظر آنے پر 10 فٹ اونچائی سے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی، موسم کا حال بتانے والوں نے دادو میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں ہی 34 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 1,101 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 52,437 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 34 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 1,101 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,743 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 18,730، سندھ میں 20,883، خیبر پختونخوا میں 7,391، بلوچستان میں 3,198، گلگت بلتستان میں 607، اسلام آباد میں 1,457، جبکہ آزاد کشمیر میں 171 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں 340، پنجاب میں 324، خیبر پختونخوا میں 381، گلگت بلتستان میں 4، بلوچستان میں 39 اور اسلام آباد میں 12 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب تک 462 اسپتالوں میں قائم قرنطینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ان اسپتالوں میں 7,295 بیڈز کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ PIA پرواز حادثے میں کوتاہی ثابت ہوئی تو ضرور مستعفی ہو جاؤں گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور PIA کے CEO کے ہمراہ کراچی میں طیارہ حادثے کے مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعے پر افسوس ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جانی نقصان کم سے کم ہو۔ اس نے رن وے پر جانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب تک دیکھا کہ وہاں تک پہنچنا محال ہے تو تنگ گلی میں اتارا۔ واقعے میں متاثر ہونے والے گھروں اور گاڑیوں کی مرمت کا خرچہ حکومت برداشت کرے گی اور شہریوں کا مالی نقصان پورا کرے گی۔ وزیر ہوابازی نے مزید کہا کہ مکمل غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تحقیقات میں وزیر یا PIA کے چیف ایگزیکٹو کی غیر ذمہ داری اور کوتاہی ثابت ہوئی تو نہ صرف استعفیٰ دیں گے بلکہ خود کو احتساب کے لیے بھی پیش کریں گے کہ ہمارے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ جن فیملیز کے گھر شہادتیں ہوئی ہیں ان سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور دلی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ کل چاند کی پیدائش ہو چکی، آج غروب آفتاب کے بعد سانگڑ، بدین اور ٹھٹا میں دیکھا جا سکے گا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق کل پاکستان میں عید الفطر ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुश्किलात पर काबू पाना ही जिंदगी है। मजहबी त्योहारों को यकजहती की वजह बनना चाहिए। रोहित हिलाल कमेटी का इजलास हमेशा से तनाज़े का शिकार रहा। रियासत फिरकावारियत से बालातर होती है। दुनिया में चांद देखना अब कोई मसला नहीं रहा। फवाद चौधरी का कहना था, इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की जुस्तजू की तालीम देता है। चांद को जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 29 दिन से कुछ ज्यादा लगता है। सूरज की रोशनी में चांद नजर नहीं आता। सूरज गुरूब होने और चांद निकलने में 38 मिनट का फर्क होना चाहिए। चांद की ऊंचाई 6.5 डिग्री होनी चाहिए। चांद नजर आने का कम से कम जाविया 9 डिग्री होना चाहिए। 22 मई की रात 10:39 पर शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है। स्पेस से वाबस्ता साइंटिस्ट हैं या स्पेस से वाबस्ता इदारे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो अगले मिशंस भेजेंगे मून में, वो ज़्यादा अरसा के लिए मून के ऊपर रहेंगे। लिहाजा ये भी इंशाल्लाह 2024 में, बल्कि इस 10 सालों में आप समझिए कि काफ़ी हद तक ये मुमकिन होगा। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि ईद का शरई फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि ईद का शरई फैसला मरकजी रोहित हिलाल कमेटी करेगी। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत ईद मनाएगी। शरीयत दीन चांद की रोहित और शहादत पर एतमाद करती है। नूरुल हक कादरी ने कहा कि फवाद चौधरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो चांद खेल रहे हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे को भी इस दफा मरकजी कमेटी में शामिल किया गया है। शहादत और रोयत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है, मगर ईद का फैसला उलमा कराम ही करेंगे। पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक ईद उल फितर कल बरोज इतवार 24 मई को होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रोहित हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पूरे मुल्क भर से चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं, लिहाजा अब ईद उल फितर बरोज इतवार 24 मई को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मजीद कहना था कि कबल अज़ीम वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि चांद नजर नहीं आएगा, लिहाजा ईद इतवार 24 मई की ही होगी। जहाँ किसी दर्जे में इम्कान रोयत था, वहाँ से जो शहादतें आईं उनको जज करने में काफ़ी वक्त लगा और फिर पूरी कमेटी ने इसके तमाम पहलुओं पर गौर किया और उसके बाद फैसला किया कि आज चाँद नज़र आ गया है और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस के 762 नए केसेस सामने आए हैं। अवाम बाज़ारों में गैर ज़रूरी रश ना करें। एहतियाती तदाबीर अपनाना ही इस वबा से निजात पाने का रास्ता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 24 घंटे में 4,336 टेस्ट किए, जिसमें 762 मुस्बत आए। अब तक 1,53,902 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 21,645 मुस्बत आए। कोरोना वायरस के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद 354 हो गई है। इस वक्त 14,078 मरीज जेर इलाज हैं। घरों में 12,424 मरीज जेर इलाज हैं। आइसोलेशन सेंटर्स में 794 और अस्पतालों में 860 मरीज जेर इलाज हैं। वज़ीर आला का कहना था 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 34 वेंटिलेटर्स पर हैं। आज मजीद 198 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए, जिसके बाद सेहतयाब मरीजों की तादाद 7,213 हो गई है। PIA के तैयारा हादसे में मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर का बयान सामने आ गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
कराची में आबादी पर गिरकर तबाह होने वाले PIA के तैयारा PK-8303 में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाज में सब सुकून से बैठे थे और लैंडिंग की तैयारी की जा रही थी। जहाज जब तक इमारतों से नहीं लगा उस वक्त तक इसमें कोई खराबी महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर लम्हे में जहाज जमीन पर जा गिरा। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि मैं 8वीं सीट पर बैठा था, अचानक जहाज जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद शोर की आवाजें शुरू हो गई। मैं होश में था और एक लोहे की रॉड पड़ी तो वो इतनी गर्म थी कि हाथ जल गए। जुबैर ने बताया कि रोशनी नजर आने पर मुझे बाहर का रास्ता नजर आया तो मैंने 10 फीट ऊंचाई से जहाज से छलांग लगाई, जिससे मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया और खुशकिस्मती से जान बच गई। अल्लाह ताला का सबसे पहले तो बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और जो हादसे की बात है वो तैयारा बड़ा स्मूथली आ रहा था। PK-8303 PIA का तैयारा है, 8F उसके अंदर मेरी सीट थी। और जब जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था तो अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि जी लैंडिंग होने लगी है, आप अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो सीट बेल्ट वगैरह बांधे हैं। जब उसने लैंड किया है तो 3 दफ़ा झटका मारा जहाज़ ने। उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला तो फिर पता नहीं क्या मसला हुआ, उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया हवा के अंदर। वहाँ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो चलाता रहा है उसको। उसके बाद जो है उसने कहा कि जी मैं लैंड करने लगा। दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हमने नीचे देखा है तो वो मलीर कैंट का एरिया लग रहा था जहाँ उसने लैंड करना था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिंध में सूरज आग बरसा रहा है। दादू में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्मी उरूज पर रहेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिंध में सूरज की तपिश ने शहरियों को झुलसा दिया। हैदराबाद, नवाबशाह, लड़काना, मोहनजोदाड़ो, मिठी, जेकबाबाद में भी शदीद गर्मी है। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद में पारा 42, मुल्तान 43 और DG खान में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को है। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भी मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।